provide Priyanka Kothari of Banjot Digital for the anthem. Thank you everyone. We rise together, we stand so tall. Vicky flows the name we call. Dreamers, builders, leading the way, empowering women every day. Step up strong, let the world know we are the fire, we are the glow. Innovation, passion in what we do. Vicky flow, we breaking through. Ideas spark and dreams take flight. We create the future shining bright. A sisterhood with hearts so true. Together we rise, we'll see it through. From dreams to action, watch us soar. Breaking barriers, opening doors. With every step we show the way for a brighter and equal day. And equal day. And equal day. Step up strong, let the world know we are the fire, we are the glow. Innovation, passion in what we do. Vicky flow, we breaking through. We breaking through. We breaking Good evening, dear Flow family. She believed she could move mountains, so she climbed them one pedal at a time. Miss Nisha, you have proved it all. It is a pleasure to have you here at this esteemed platform and hear from you unfiltered as it is. A good coach can change a game, and a great coach can change a life. A very warm welcome to Coach Nilesh Barotji, the guiding force behind Nisha's remarkable journey. April has been a month of amazing endeavors for Flow Indore, and I'm bursting with pride to share them all with you. Opening this year with Indian actress and model Miss Neha Dhupia for our launch session of committee introduction was a roller coaster ride, but we really sailed through. Our Flow marketplace is soaring, with members boldly pitching their brands and sharing their ventures with the world. It is a vibrant place where your dreams take the center stage, and I'm thrilled to see it grow. Our financial literacy workshop at Malwa Institute for their faculty was full of learning, knowledge upgradation, and feeling empowered by taking charge of your financial future. The Spark Case Study Group hosted a fascinating session on the rise and fall of Cafe Coffee Day. What an eye-opener it was. Our members walked away with powerful lessons about business and resilience. We are having a medical camp and a skilling workshop at Ahir Khedi village on 27th April. Our Flow Kavach medical team and Flow rural skilling team take over this initiative. Let's come together in big number to help these rural ladies. The Skilling Initiative team is also working on wedding projects as per national initiative which is called Project Wing. Flow Connect, our monthly newsletter, is a cozy space where you share your write-ups, blogs, and bind us together with a big, loving family. The April edition is a big success, and the May edition is around the corner. Copies of April edition are available to be picked.
Flow Spark book reading has already started with Becoming by Michelle Obama, and it's amazing to see the energy there. Spark Culinary Group has widened their scope to include many other areas, so they are renamed Beyond the Palais from now. Reverse Mentoring Group is creating experiences that truly spark joy in members. If you want to join any of these groups, please connect with the respective team leaders. Please save Flow official number for future updates. Girls, mark your calendar, May 11, a day which is very interesting and very heart-touching. This is just a beginning. I need you, each one of you, to come forward, connect deeper, and let Flow shine even brighter. Because at Flow, we don't just show up, we show up with a purpose. Thank you. Thank you. To formally introduce our guest of honor, Ms. Nisha Kumari, I call upon Ms. Varsha Dagra, Committee Member and Skilling and Livelihood Head, 2526. थैंक यू नेहा। हौसला रखो, मंजिल मिलेगी ज़रूर, धीरे ही सही पर सफ़र तय होगा ज़रूर। गुड इवनिंग वन एंड ऑल। It's an honor to introduce someone who has redefined the idea of adventure with purpose. Ms. Nisha Kumari, raised in military family, took up basic and advanced mountaineering and sports courses in Kashmir and Mount Abu. She successfully submitted several challenging peaks, namely Mount Friendship Peak, Mount Satopant, Mount Nun, Mount Manaslu, and the great Mount Everest. For Nisha, sky is the limit. Apart from this, she has taken numerous expeditions, Ride for Nation, Ride for Vaccination, where she cycled from Manali to Khardunga La Pass to create vaccination awareness in COVID-19. 30-year-old Nisha completed an extraordinary 16,000 kilometer cycling journey from Vadodara to London Bridge, spanning 16 countries in 210 days. But it wasn't just about miles. जहाँ जहाँ गई वहाँ पेड़ लगाए, spreading awareness about climate change. Accompanied by her coach, Mr. Nilesh Barot, she embarked on this journey on June 23, 2024 to January 19, 2025, with aim of promoting environmental conservation and sustainability. Along the way, the duo planted over 1,050 trees. She faced wide climate change due to global warming, but she even cycled in minus 20 degrees in Russia or minus 10 degrees in China, or world record of cycling minus 155 meters below sea level in Turpun village. पर निशा जी, आपके हौसले के आगे तूफान भी झुकता है। What drives her isn't about covering distance or getting recognitions or fame, but a mission. धरती को थोड़ा और हरा और इंसानियत को थोड़ा और हौसले वाला बनाना. Change before climate changes. And today, she is here with her coach, whose support helped bring her vision to life. So please join me in giving a warm Fiki Flow welcome to our Bharat ki beti, Nisha Kumari, and her coach. May I request our own mountaineer chairperson, CA Shweta Agarwal, to escort the inspirational Ms. Nisha Kumari and her coach, Mr. Nilesh Barot, on stage, please. Thank you.
Good evening, everyone. We are so excited to have Nisha here. Welcome, Nisha, to Indore family. Thank you so much, ma'am. So I'm sure when you came to Indore, you must have seen the green and clean Indore. So what was your experience? You actually found it green and clean? आई एम सो हैप्पी टू बी इन इंदौर. आप लोगों ने बुलाया, फिकी फ्लो फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जितने भी राउंड अबाउट्स हैं सभी एकदम ग्रीन है और एकदम क्लीन पूरी सिटी है. रोड के दोनों तरफ बहुत अच्छी ग्रीनरी है और यहाँ पे उसको मेंटेन कर रहे हैं. आई एम सो हैप्पी टू बी इन इंदौर. Great, Nisha. So let us start with your journey. Your journey when you were in a school. So can you tell me about your first school? मेरी स्कूलिंग हुई है वो केंद्रीय विद्यालय में हुई है और मेरा फर्स्ट स्कूल था केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सूरतगढ़ राजस्थान. मेरे फादर एयरफोर्स में थे इसलिए पूरी की पूरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में हुई है. तो क्या वहाँ पर भी यू वर एन एथलीट? वहाँ पर भी साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग मतलब बचपन से था कि ये बाद में आया? खेलने का शौक बचपन से ही था और जब भी स्कूल में कोई भी कॉम्पिटिशन्स होते थे तो पार्टिसिपेट करती थी. हर एक एथलेटिक एक्टिविटी में बहुत अच्छा लगता था. तो आपने कब, एक्टिविटीज़ तो बच्चे करते हैं, खेलना कूदना ये तो नॉर्मल है, बट क्या ऐसा हुआ कि आपको लगा नहीं इसके ऊपर कुछ करना है? मतलब इतना जोखिम भरा जो आपने रास्ता लिया वो कैसे डिसाइड किया? मैम जब मैं मास्टर्स कर रही थी MS यूनिवर्सिटी में, मैंने मास्टर्स किया है इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स में. तो इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स में, वाओ. हम हमेशा सोचते हैं या तो पढ़ लो या खेल लो. उस ड्यूरेशन में जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मतलब हमारे कॉलेज में एक परामर्श करके इवेंट था, उसमें हाई रोप एक्टिविटीज़ लगी हुई थी. क्लास ख़त्म करने के बाद हम सभी गर्ल्स क्लास से बाहर आए तो देखा कि बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ लगी हुई हैं और बॉयज़ कर रहे हैं. तो मेरे साथ में जो गर्ल्स थी वो लोग ऐसा बोले कि ये सब चीज़ें गर्ल्स के लिए नहीं है, हमें नहीं करनी चाहिए, मतलब हम लोग नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, कितना रिस्क है, ये है वो है. तो मुझे अंदर से हुआ कि क्यों नहीं कर सकते, ट्राई तो एटलीस्ट कर सकते हैं. होगा नहीं होगा वो बाद का है, रिजल्ट बाद में देखते हैं, बट एटलीस्ट अपनी तरफ से तो ट्राई करना चाहिए. तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ. और सबसे पहली एक्टिविटी जो मैंने चूज़ की थी वो रैपलिंग की चूज़ की थी. 5वें माले से रैपल करते हुए नीचे आना है और फाइनली मैंने उसको कंप्लीट किया और सक्सेसफुली कंप्लीट किया. और उसके बाद मैंने सोचा कि बाकी जो एक्टिविटीज़ है उनको भी ट्राई करते हैं. जब मैंने कर लिया तो मुझे अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया और मैंने मेरे साथ वाली जो गर्ल्स थी मेरी फ्रेंड्स को बोला कि यार ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते. हम खुद को ही डिमोटिवेट करते हैं कि ये काम गर्ल्स के लिए नहीं है. क्या मतलब जब अभी आप लोग बोल रहे थे थोड़ी देर पहले ही कि हम लोग ये एक्टिविटीज़ जो है वो ये सब एडवेंचर फील्ड जो है वो गर्ल्स के लिए नहीं है, तो मुझे करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो क्यों गर्ल्स के लिए नहीं है? आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए. एटलीस्ट एक अंदर का जो डर है वो खुलता है. तो मुझे वहाँ से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला था और वो एक मोमेंट था जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे कोच नीलेश सर के साथ कनेक्ट हुई थी. उन्होंने ही वो हाई रोप एक्टिविटीज़ वहाँ पे लगाई थी और तब फर्स्ट मोमेंट था जब हम लोग एक दूसरे को मिले थे वहाँ पे. तो सर फर्स्ट मोमेंट था जब आप निशा से मिले थे वहाँ पे, तो आपको क्या लगा? सब लड़के कर रहे हैं, ये अचानक से एक लड़की आ गई, आपका क्या थॉट था उस समय? MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के अंदर ये पूरा परामर्श करके एक इवेंट होता है, हर साल होता है. उसके अंदर हम हाई रोप एक्टिविटीज़ लगाते हैं. तो गर्ल्स में निशा ने किया तो मैंने मेरी पूरी टीम को इकट्ठा किया पहले तो, क्योंकि बहुत सारे बॉयज़ ने किया था लेकिन गर्ल्स फर्स्ट थी. तो गर्ल्स के फियर को दूर करने के लिए इसने एक एग्जाम्पल दिया वहाँ पे. तो मैंने मेरी टीम को इकट्ठा किया और क्लैपिंग स्टार्ट करवाया निशा के रिगार्डिंग. तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट थे सारे सब लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, निशा को अप्रिशिएट किया. और निशा का आई थिंक माउंट एवरेस्ट का फर्स्ट स्टेप जो था वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था. उसके बाद आपने छोड़ा नहीं निशा को? एक्चुअली मैंने निशा को नहीं छोड़ा है. एक गुजराती का माइंड थोड़ा बिजनेसमैन भी रहता है, इसमें गुजराती भी रहते होंगे कोई ना कोई. ओके, तो डिफेंस परिवार से फुल डिसिप्लिन वाली लड़की,
एनसीसी किया हुआ, उसमें भी रैंकेड। तो मुझे मैं एडवेंचर कैंप करवाता हूँ, तो मुझे एज अ वॉलंटियर और लीडर एक ग्रेट मिल रहा है, तो एक गुजराती माइंड बोल रहा है कि अब इसको एक्सेप्ट कर लो फटाफट अपनी टीम में। ओके, तो वो किया। उसके बाद तो बहुत सारे आगे के जर्नी बहुत सारी लंबी है, वो तो आगे आप देख ही रहे हो। बिल्कुल। एंड उसके बाद निशा, वो फर्स्ट आपने रैपलिंग करी, वो एक्टिविटी करी, यू मस्ट हैव मोटिवेटेड लॉट ऑफ गर्ल्स फॉर दैट। उसके बाद कैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ी और ये एवरेस्ट तक कैसे पहुंच गई? मतलब रैपलिंग करने से एवरेस्ट तक तो आई एम श्योर बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेशन लगा होगा, तो थोड़ा प्लीज़ बताइए। ये जो रैपलिंग की थी ये 2015 में की थी। उसके बाद मेरा एक ड्रीम जो था कि वो अभी भी मैं वो चीज़ कर रही हूँ और उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा विलेजेस की गर्ल्स हैं उनको स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करें और उनको सेल्फ डिफेंस सिखाए। जैसे कि मैंने एनसीसी किया था और उसके बाद मैंने स्पेशली सेल्फ डिफेंस के लिए कोर्सेज किए। वडोदरा में एक शी टीम है पुलिस की जो सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज करवाती भी है, 10-10, 12-12 दिन के। तो वो भी मैंने कोर्सेज किए, 3 से 4 बार मैंने उन्हीं कोर्सेज की प्रैक्टिस की अलग अलग। और उसके बाद मैं जो विलेजेस में एमएससी के साथ साथ जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं गांव के स्कूल्स में जाती थी। वहाँ पे बच्चों को, सिर्फ गर्ल्स को नहीं, बॉयज़ को भी इवन स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करती थी, सेल्फ डिफेंस सिखाती थी। तो अचानक से एक प्रिंसिपल सर ने मुझसे एक दिन एक क्वेश्चन पूछा कि मैडम आपने स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या अचीव किया है, जो आप बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो, आपने खुद ने स्पोर्ट्स में क्या अचीव किया है? तो मेरे माइंड में आया कि यार रियली मैंने स्पोर्ट्स में कुछ नहीं किया है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन, अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है और ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ अचीव अब मुझे करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी पर्सन ऐसा क्वेश्चन या ऐसी उंगली मेरे ऊपर ना उठा सके कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया है। तो उस टाइम पे डिसाइड किया था कि अब माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, जो बहुत कम लोग करते हैं, और लोगों को करके दिखाना है कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं कर भी सकती हूँ। थैंक यू सर। कैसे आपने ट्रेनिंग करी? थोड़ा इनकी ट्रेनिंग, थोड़ा सा हार्डशिप्स, सोशल प्रेशर्स, मतलब आई थिंक पेरेंट्स ने बोला होगा ये कहाँ चल दी। ये क्वेश्चन मेरे पास तो फैमिली से भी बार बार आते हैं, निशा की फैमिली से बार बार आते हैं। और वो 4 लोग कोई बोल रहा है, वो 4 लोग आज तक कभी तक मिले नहीं वो लोग, समझो। तो 4 लोग तो बोलते रहेंगे। और निशा की ट्रेनिंग के रिगार्डिंग मैं बात करूँ तो निशा मेरे घर से 350 किलोमीटर दूर रहती है, पहली बात तो ये। ओके, और ये ट्रेनिंग अभी कैसे पॉसिबल होती है आप देखो। रोज़ ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन उनका सेशन होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद रिपोर्टिंग आता है और दूसरे दिन का फिर से हमें वर्कआउट देना पड़ता है। एक दिन का वर्कआउट दे दिया और दूसरे दिन का वर्कआउट मेरे से मिस आउट हो गया या लेट हो गया तो रात को 11 बजे भी कॉल आता है कि मेरा वर्कआउट मॉर्निंग में नहीं आया है सर, तो मुझे वर्कआउट दीजिए। तो डेडिकेशन भी होना चाहिए। मेरे पास माउंट एवरेस्ट के रिगार्डिंग 5 लड़के और एक निशा, 6 एक गर्ल्स ये ट्रेनिंग ले रहे थे। कोविड आया, सारे बॉयज़ भाग गए, सारे के कहीं ना कहीं फैमिली ने उनको बैकअप कर लिया। और उसी टाइम पे भी निशा ने डेडिकेशन रखते हुए कंप्लीटली कोविड में भी पूरा सारे टास्क जो हम दे रहे थे वो सारे कंप्लीट किए। निशा ने कंटिन्यू, हमारा मेंटली ट्रेनिंग के रिगार्डिंग 12 आवर्स रनिंग रहता है, कंटिन्यू रनिंग ग्राउंड के अंदर, कंटिन्यू 12 आवर्स, 90 to 95 किलोमीटर्स रनिंग करना 12 आवर्स। रात को 8 बजे से स्टार्ट करना और मॉर्निंग में 8 बजे उसको ख़त्म करना। और एक दिन 15 अगस्त का टाइम था, मुझे याद है अभी भी, और हमारे वहाँ पे होम मिनिस्टर सर थे जो फ्लैग होस्टिंग करने वाले थे। तो टोटल 12 आवर्स का रनिंग करके सीधा ग्राउंड से उन्होंने वहाँ पे फिर फ्लैग होस्टिंग के लिए निशा को बुलाया था। मुझे आज भी याद है वो मोमेंट। ओके, प्राउड मोमेंट। यस, प्राउड मोमेंट था। दूसरा, नैनीताल आप लोगों ने सुना होगा और नैनी झील भी देखी होगी। कोविड के टाइम पे 12 आवर्स रनिंग नैनीताल के आजू बाजू में पेरीफेरी में किया हुआ है कोविड के टाइम पे। वहाँ के पुलिस वाले भी निशा को रूटीन बोलते थे कि ये लड़की क्या कर रही है, कोविड के नाम पे लोग घर पे घुस रहे हैं और ये 12 घंटे रनिंग कर रही है, समझो। तो बहुत सारे प्राउड मोमेंट हमारे रिगार्डिंग, हमारी ये ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आए हैं। जैसे साइकिलिंग
एक पार्ट है हमारा माउंटेनियरिंग के अंदर कि लंग्स और लोअर बॉडी के लिए, फिटनेस के लिए। तो माउंटेन्स के अंदर निशा ने बहुत सारी साइकिलिंग की है, मनाली टू लेह और सब कुछ जगह पे। तो ट्रेनिंग सेशन तो 1 by 1 ट्रेनिंग सेशन की बात करूँ तो पूरा दिन यहाँ अपना निकल जाएगा। तो ओके, थैंक यू। So Nisha, as a woman, can you describe the most difficult moment? A moment to when you were climbing Everest. कभी ऐसा सोचा कि because I am a woman ये तकलीफ मुझे ज़्यादा आई? एज अ वीमेन प्रॉब्लम आता है कि एक तो अपना हाइजीन देखना है, दूसरा जब हम माउंटेन्स में क्लाइंब करते हैं तो हमारे पास डिस्पोज करने के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर पीरियड्स आते हैं तो हमारे पास सैनिटरी पैड्स को डिस्पोज करने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो हमें वो सैनिटरी पैड्स अपने बैग में रखने होते हैं। तो उसी बैग में हमारा फूड है, हमारे कपड़े हैं, और अगर हम उसी बैग में सैनिटरी पैड्स रखेंगे तो कितना अनहाइजीनिक हो जाता है। तो पहले तो उसके बारे में सोचा कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 दिन का नहीं होता है, वो कम से मिनिमम 6 डेज लगते हैं जब हम कंटिन्यू एक स्ट्रेच देते हैं। तो जैसे बेस कैंप से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं तो मिनिमम 4 डेज और मैक्सिमम आप जितना खींचो उतना, और वापस आने में 2 दिन, तो लगभग 6 दिन मिनिमम उस चीज़ को लगते हैं। तो 6 दिन तक सैनिटरी पैड्स, 6 डेज तक सैनिटरी पैड्स बैग में रखना, वो भी कितना अनहाइजीनिक हो जाता है। उसके साथ साथ जो हमें रेडी टू ईट फूड है या हमारे चॉकलेट्स है, जो कुछ भी है, पानी है, वो सब कुछ अनहाइजीनिक हो जाता है। वो उसको कैसे मैनेज करें, तो उसके ऊपर स्टडी की, काफ़ी लोगों से बात किया, तब फिर मैंने सोचा कि मेंस्ट्रुअल कप दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसको यूज़ करने में भी पहले डर लग रहा था, फिर धीरे धीरे उसको यूज़ करना शुरू किया। फिर अच्छा लगा कि जब मैं वहाँ जा रही हूँ तो मेरी हर एक चीज़ हाइजीनिक है। एटलीस्ट हमें गर्म पानी मिलता है, हम गर्म पानी से उसको वॉश कर सकते हैं और उसको हाइजीनिक, अपनी बॉडी को हाइजीनिक रख सकते हैं। दूसरा मोमेंट वो पहले नहीं था, लेकिन जब ऑन द स्पॉट अपने सामने कोई अचानक से ऐसा मोमेंट आए कि पूरी जो जर्नी है कैंप 4 से सबमिट की तरफ, उसमें पूरी जर्नी नाइट में की है, और अचानक से जब मॉर्निंग होती है, उजाला होता है और आपके सामने डेड बॉडी है, और डेड बॉडी भी ऐसी कंडीशन में है कि आप उसको दूर से देखो तो ऐसा ही लगता है कि वो कोई इंसान बैठा है, लाइव है, जिंदा है, और उसको आपको क्रॉस करके, मतलब आप उसके आजू बाजू से नहीं जा सकते, वो ऐसी सिचुएशन में है कि उसको आपको क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने तो सिर्फ मूवीज़ में देखी थी और बुक्स में पढ़ा था, लेकिन इतने माउंटेन्स क्लाइंब किए कभी लाइव मैंने फेस नहीं किया था। तो फर्स्ट टाइम जब मेरे सामने ऐसा हुआ तो मेरी आंखों में पानी आ गया था, और मैं खुद 2 मिनट के लिए फ्रीज हो गई थी वहीं पे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे एथिक्स इस चीज़ को नहीं मानते कि हम लोग किसी डेड बॉडी को उल्लांघ के ऊपर से क्रॉस करके जाए। तो मेरे मतलब अंदर से ऐसा कांपने लग गया था शरीर की, क्या ही करे। फिर वो ड्रीम याद आया कि मेरे को ये चीज़ पिंच की थी। और ये सब चीज़ों में क्या होता है, जब माउंटेन्स क्लाइंब करते तो आप अगर 10 मीटर से भी वापस आ जाते हो ना, तो कोई ये नहीं देखता कि क्यों आप 10 मीटर से रह गए। आप वहाँ तक पहुँचे, 8,849 मीटर्स तक आप पहुँचना है, और आप 49 की जगह 39 मीटर्स तक पहुँचे। कोई ये नहीं देखेगा कि आप 8,839 मीटर्स तक पहुँचे। सब ये देखेंगे कि ये टॉप पे नहीं पहुँची, यानी कि इसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया। वो मोमेंट भी मेरे दिमाग में चल रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी करके निशा आगे तो बढ़ना है, तुझे जो लोगों ने तेरे ऊपर सवाल उठाए हैं उनको रॉन्ग प्रूफ करना है। तब मैं आगे बढ़ी और 17 मई 2023 को अपना जो तिरंगा है वो मैंने टॉप ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट पे लहराया। Amazing determination at its peak actually. वो भी एक मोमेंट ऐसा था जब मुझे ऐसा लगा कि लिटरली कोई भी काम ऐसा नहीं है जो गर्ल्स नहीं कर सकती। अब आप एवरेस्ट पर पहुंच गए। अब मुझे बताइए, वहाँ पर आपको फ्रॉस्ट बाइट हुआ था,
थोड़ा सा आप हमें बताएंगे फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है और वो क्या एक्सपीरियंस था और आपने कैसे उससे लड़ा? फ्रॉस्ट बाइट यानी कि ठंडे की वजह से, लो ऑक्सीजन की वजह से हमारा जो ब्लड है बॉडी में कुछ पार्ट्स में वो जम जाता है। ब्लड थिकनिंग नहीं, वो एकदम ही फ्रोज़न हो जाता है। तो वो पोर्शन पहले रेडनेस होती है, फिर ब्लूनेस आती है, फिर ब्लैक हो जाता है, एकदम हार्ड पत्थर की तरह हो जाता है, ब्लिस्टर्स आते हैं। तो ऐसे अलग अलग उसके स्टेजेस होते हैं। तो मुझे इनिशियली जब फ्रॉस्ट बाइट हुआ तो मुझे नहीं पता था कि मुझे फ्रॉस्ट बाइट हुआ है, क्योंकि जब मैं डिसेंड कर रही थी, सबमिट तो किया, फ्लैग लहराया, सब कुछ अच्छे से हुआ। जब मैं डिसेंड कर रही थी, मैंने अर्ली मॉर्निंग 6:05 पे अपना जो फ्लैग है वो वहाँ पे टॉप पे लहराया था। डिसेंड करते वक्त उस टाइम पे कोई भी ऊपर नहीं था, मैं और मेरे गाइड शेरपा वो ऊपर थे। तब मैंने डिसेंड किया तो उस टाइम पे सब लोग क्लाइंब कर रहे थे, बाकी के जितने भी फेलो क्लाइंबर्स थे वो सब क्लाइंब कर रहे थे। तो मुझे उनको प्रायोरिटी देनी पड़ते हैं माउंटेन्स के रूल्स के हिसाब से, कि जो अप जा रहा है उसको आपको प्रायोरिटी देनी है अगर आप डाउन आ रहे हो तो। मैंने उनको प्रायोरिटी दी, उसमें मुझे 2.5 घंटे एक ही जगह पे खड़े रहना पड़ा। उस ड्यूरेशन में वेदर इतना ख़राब हुआ कि मेरे जो गॉगल्स थे, मेरी हेड टॉर्च, वो सब रबड़ से टाए होते हैं पीछे से, तो वो सब कुछ हवा की वजह से, इतनी तेज़ हवा थी, 45-50 km/h की विंड थी, उसकी वजह से वो सब कुछ उड़ गया। भगवान की दया से मैंने सब कुछ गियर्स जो था वो एक एक स्पेयर में अपने पास दूसरा अपने बैग में रखा था। तो मेरे गॉगल्स मैंने तुरंत निकाले और लगा लिए, क्योंकि दिन का टाइम था, स्नो ब्लाइंडनेस भी हो सकती थी। उस टाइम ऐसा कि हाथ एकदम फ्रीज नहीं हो जाते, कुछ देर के लिए सुन्न हो जाते, वैसा लग रहा था मुझे। जैसे जैसे डिसेंड करना शुरू किया, कैंप 4 पे आई तो हाथों में थोड़ा मतलब बर्निंग सेंसेशन, हल्का सा स्लाइट पेन जैसा होना शुरू हुआ। उसके बाद मुझे माउंट एवरेस्ट के साथ साथ कैंप 4 से ही ऊपर माउंट लोथ से भी करना था, जो वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट पीक है। तो उस पे जाने के लिए वेदर बहुत ख़राब था। तो मेरे जो शेरपा थे उनसे मैंने बात करके डिसाइड किया कि आज अगर वेदर ख़राब है तो कैंप 4 पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे एनर्जी एक एक ब्रीदिंग के साथ लूज़ होती है। हम लोग कैंप 2 जाते हैं और जब वेदर खुलेगा तो हम वापस से ऊपर जाएंगे और सबमिट करेंगे माउंट लोत्से को। जैसे कैंप 2 आए तो पेन बढ़ने लगा। मैंने उनको दिखाया कि दाई मुझे हाथ में पेन हो रहा है। मैंने ग्लव्स निकाले, उनको दिखाया तो उसमें रेडनेस थी। तो उन्होंने बोला कि निशा हमें बेटर है कि हम डिसेंड करें। मुझे भी लगा कि कोई प्रॉब्लम अपने पास है, उसको बढ़ाने से अच्छा है उसको हम लोग क्योर करें। तो कैंप 2 से जब मैं बेस कैंप आई तो धीरे धीरे उसमें ब्लस्टर्स होने शुरू हो गए थे। फिर वहाँ से फ्लाई करके हम लोग हेलीकॉप्टर से फ्लाई करके पहले लुकला आए। लुकला पे 4 घंटे वेटिंग करना पड़ा बिकॉज ऑफ बैड वेदर। हेलीकॉप्टर नहीं चल रहे थे, फ्लाइट्स भी नहीं चल रही थी। वहाँ से जैसे काठमांडू आई, वहाँ पे मतलब एक्चुअली वहाँ से मैसेज ऊपर से ही पहुँचा दिया गया था कि निशा को ऐसा कुछ। जब मैं कैंप 2 पे थी तो नीचे मैसेज वॉकी टॉकी से पहुँच गया था और वहाँ से फैमिली के पास और नीलेश सर के पास मैसेज पहुँच गया था कि ऐसा निशा को कुछ फ्रॉस्ट बाइट जैसा हमें सिम्टम्स लग रहे हैं। मैं जैसे ही हॉस्पिटलाइज हुई नेक्स्ट डे ही नीलेश सर वहाँ पहुँच गए थे काठमांडू, और मेरी फैमिली भी, उन लोगों ने भी सब प्रिपरेशन शुरू कर दी थी कि क्या है क्या नहीं है, हॉस्पिटल पहुँचने के बाद पता लगेगा। मैं हॉस्पिटल पहुंची, मेरा ट्रीटमेंट काठमांडू में चालू हुआ। 5 दिन का ट्रीटमेंट काठमांडू में हुआ और उसके बाद जो एक थेरेपी है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, वो नेपाल में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, जो कि फ्रॉस्ट बाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मुझे इंडिया भेजा गया। मैं इंडिया आई, RR हॉस्पिटल, आर्मी का हॉस्पिटल है दिल्ली में। वहाँ से फिर वहाँ पे पता लगा, वहाँ पे सभी लोग जितने भी आर्मी वाले थे वो, उनको पता लगा कि ऐसे मैं वहाँ पहुँचने वाली हूँ। तो वो लोग सब लोग मेरे ट्रीटमेंट के लिए, सारे ऑफिसर्स वहाँ पे, मेडिकल ऑफिसर्स वहाँ पे आ गए थे और उन्होंने देखना शुरू किया। और फिर जब उनको पता लगा कि ऐसा ऐसा है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो दिल्ली की जगह बॉम्बे में हो सकता है, और तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि आप जल्दी से जल्दी बॉम्बे जाइए। हम लोगों ने जल्दी से जल्दी बॉम्बे की टिकट्स कराई, वहाँ से फ्लाई किया और बॉम्बे में इतना ग्रैंड वेलकम। रात को 10 बजे सारे के सारे स्पेशलिस्ट, नेवी का इतना बड़ा हॉस्पिटल है अश्विनी हॉस्पिटल, वहाँ पे सारे के सारे स्पेशलिस्ट रात को 10 बजे भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग वहाँ जाएंगे। वहाँ पहुँचे, सभी ने
पहले तो वेलकम किया और उसके साथ साथ ऑन द स्पॉट रात को 10 बजे ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो ये सब मोमेंट्स हमेशा एक मतलब लाइफ टाइम याद रहने वाले मोमेंट्स है। मेरा ट्रीटमेंट बहुत लंबा चला, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, नीलेश सर ने बहुत सपोर्ट किया, और मेरी मदर जो थी उन्होंने मुझे लगभग 7 से 8 महीना फीडिंग, जैसे एक छोटे बच्चे को फीडिंग करते हैं, फीडिंग किया, नहलाना सब कुछ उन्होंने ही किया। उसके साथ साथ मेरा वर्कआउट चालू था, तो उस वर्कआउट को कैसे मैनेज करना है, मेरी फिंगर्स में प्रॉब्लम ना आए, वो सब मैनेज करने के लिए नीलेश सर बैठे थे। तो मुझे तो सिर्फ वर्कआउट करना था तो मुझे मैनेजमेंट कुछ भी नहीं करना था। और उसके बाद फिंगर्स में मुझे फिंगर्स कट करनी पड़ी। मेरी फिंगर्स की 9 फिंगर्स के जो नेल्स है वो नहीं है, बट आई एम नॉट रिग्रेट फॉर दैट कि मैंने ऐसा क्यों किया। आई एम हैप्पी कि मैंने कुछ अचीव किया है, और उसके लिए अगर छोटा मोटा बलिदान देना पड़े तो दैट्स नॉट अ बिग थिंग। एक छोटी सी मोमेंट मैं आपको बताता हूँ। निशा अश्विनी हॉस्पिटल, नेवी हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट है। ये वहाँ से कॉल करिए, एक तो फिंगर से, तो बाकी इसकी बॉडी कंप्लीट है, सिर्फ फिंगर नेल में प्रॉब्लम है। बोले कि सर वर्कआउट का प्लान तो दो मुझे। मैंने बोला हॉस्पिटल में तू मेरे से मत पूछ, डॉक्टर से पूछ, कि जो भी करेंगे वो डॉक्टर करेंगे, वहाँ के एक्सपर्ट्स डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर से पूछा होगा कि ऐसा ऐसा है, तो डॉक्टर ने उल्टा क्या किया, वहाँ पे अश्विनी हॉस्पिटल में सारे जो स्पेशलिस्ट थे, निशा का मोटिवेशन टॉक हॉस्पिटल में रख दिया पूरा तो डॉक्टर बोले कि वो वर्कआउट करे, उससे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बोले। तो पूरा मोटिवेशन टॉक सारे डॉक्टर्स और सारे नेवी के ऑफिसर, तो आपको मालूम होगा कि वो कितने ट्रेंड रहते हैं, लेकिन उनको नॉलेज है कि गर्ल्स एज अ गर्ल्स माउंट एवरेस्ट फतेह करना कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो वो लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट किया निशा का वहाँ पर भी, और बहुत उसको संभाल के पूरी ट्रीटमेंट की। अमेजिंग अमेजिंग। उसके बाद भी आपने इतना कुछ हो गया फिजिकली, मेंटली, आई थिंक इतना कुछ होने के बाद भी आप रुके नहीं। अमेजिंग। अच्छा एक बात बताओ, आफ्टर ऑल दीज यू स्टिल चोज साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट, मतलब फिर से एक एक्टिव स्पोर्ट, कैसे? ये जो मिशन था मैम कि नेचर के लिए कुछ करना है, ये एवरेस्ट से पहले ही दिमाग में आ गया था। जब माउंट मनासलू एक पीक है, वर्ल्ड की 8th हाईएस्ट पीक है, तो वो मैं क्लाइंब करने जा रही थी, और उसमें 7000 मीटर्स की हाइट से ऊपर थी। मेरे फेलो कलीग्स मुझसे लगभग 100-150 फुट आगे थे, और एवलांच एक बर्फ़ का तूफान जैसा होता है, जिसमें पूरी की पूरी बर्फ़ जो पहाड़ की होती है वो एक साथ ढह जाती है, और उसमें जो कुछ भी आता है उसके बचने के चांसेस 99% नहीं होते। तो एवलांच आया, और उसमें मेरे जो फेलो कलीग्स थे और साथ में जो एक्सपीरियंस शेरपास थे वो सब दब गए। उसमें से मुश्किल से 1 या 2 कोई बचे, बाकी सब की वहाँ पे डेथ हो गई। सेम मोमेंट, मतलब मैं वहाँ पे 4 दिन के लिए स्टक हो गई 7000 मीटर से ऊपर की हाइट पे। सेम टाइम इंडिया में 2022 अक्टूबर की बात है, ये 4 अक्टूबर की, इंडिया में 29 स्टूडेंट्स और टीचर्स जो माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे, वहाँ पे एवलांच आया, और सब के सब 29 की डेथ हो गई एवलांच में दबने की वजह से। तो ये सब क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो वहाँ से ही सोच लिया था कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कुछ तो करना है, और उसी टाइम पे मैंने नीलेश सर को बोला था, बट फर्स्ट मिशन था माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना, उसके बाद इस मिशन पे काम करना था। तो हॉस्पिटल से ही वर्कआउट करना सिर्फ और सिर्फ इस मिशन के लिए शुरू किया था कि वापस से अपने आप को उतना ही फिट बनाना है, और नेक्स्ट जो भी चैलेंज है उसके लिए सोचना शुरू कर दिया था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये जो मैसेज है वो सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर सके। और उसको वर्ल्ड वाइड मुझे इसलिए स्प्रेड करना था। एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि 4 लोग अगर एक नाव में सवार हैं और वो 4 के बीच में झगड़ा होता है, वो अपना पार्टीशन कर लेते हैं कि 2 एक साइड और 2 एक साइड, गुस्से में एक दूसरे को नहीं बोलते हैं। अचानक से एक साइड से नाव में होल होता है, तो उस साइड के जिस साइड होल होता है उस साइड के 2 लोग तो बाल्टी और मग वगैरह लेके पानी को खाली करना शुरू करते हैं वापस से, पर वो दूसरी साइड के खुश हो रहे होते हैं कि भाई अच्छा है हमारी साइड कुछ भी नहीं है। तो
हमारी साइड होल होता तो हमें उतनी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन अल्टीमेटली होने क्या वाला है, पूरी नाव ही डूबेगी अगर पानी अंदर जाएगा तो अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रीन है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है और जो है वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। पर पर्सन लगभग 6 से 7 हेक्टेयर फॉरेस्ट की ज़मीन अगर वो लोग काउंट करें ना, तो पर पर्सन 6 से 7 हेक्टेयर ज़मीन हर किसी के हिस्से में आ सकती है फॉरेस्ट की, तो इतनी फॉरेस्ट है। बट अगर कहीं कोई भी एक जगह पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग किसी एक जगह की वजह से हो रही है, तो पूरे वर्ल्ड पे उसका असर होने वाला है। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज स्प्रेड करना था और सर्च किया पहले। मतलब मुझे दिमाग में ये एक चीज़ थी कि पुराने ज़माने में जब अंग्रेज़ों का टाइम था, तब कलकत्ता से लंदन तक एक बस चलती थी, तो मैंने उस पर भी सर्च करना शुरू किया, तो देखा कि लोग अभी भी बाइक्स पे और कार में जाते हैं लंदन, यानी कि रोड है, तो क्यों ना साइकिल से इस रोड पे जाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग तो ट्री प्लांटेशन करेंगे ही, लोगों को भी उसके कंसिक्वेंसेस बता सके, लोगों को भी उसके लिए मोटिवेट कर सकें। तो वो मिशन उस टाइम पे लिया और इसीलिए मैंने ये साइकिलिंग का मिशन लिया। 16 कंट्रीज़, 16,800 मतलब 16,888 किलोमीटर्स का डिस्टेंस 210 दिन में कवर किया। बस इतना ही था। ये इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा बताइए, इतनी बड़ी जर्नी आपने प्लान करी, रहना, खाना पीना, वीज़ा अक्रॉस 16 कंट्रीज़, तो डिफ़िकल्ट तो आई एम श्योर हुआ होगा। तो वो कैसे प्लान किया? कभी जीपीएस की वजह से दिक्कत आई हो? सर बताएंगे। यस सर। पहले तो फूड की बात करते हैं। तो फूड में हम दोनों प्योर वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियन यानी इंडिया छोड़ा आपने तो फूड की दिक्कत स्टार्ट हो गई। हम एग्स भी नहीं खाते, तो प्रिपरेशन में हम प्रोटीन सारा लेके गए थे, जैसे मूंग हो गई, चना हो गया, सत्तू हो गया घर के बनाया हुआ समझो, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कैरी करके गए थे। एक्चुअली रेडी टू ईट का मैं पहले ऑपोजिट था कि मैं नहीं यूज़ करता था समझो, लेकिन इस जर्नी में तो रेडी टू ईट भी हमने बहुत यूज़ किया। पोहा है या जो भी है अपना रेडी टू ईट बना के फटाफट खा लिया। चाइना के अंदर इतना अच्छा फ्रूट मिला कि हमने लाइफ टाइम इतने बड़े हुए कभी भी ऐसा फ्रूट खाए नहीं है समझो। ओके, तो चाइना के अंदर फ्रूट बहुत ऑर्गेनिक और बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अभी डिस्क्रिप्शन में एक बताया कि तुरपुन करके एक जगह है -155 मीटर्स नीचे, वहाँ पे वो लोग ग्रेप्स की खेती करते हैं पूरी। -1 सी लेवल से -155 मीटर पे वो लोग ग्रेप्स की खेती करते हैं। तो फ्रूट बहुत मिल गए। बाकी क्योंकि वहाँ पे खाने का कुछ आगे ऑप्शन ही नहीं था। ऑयल फ्रेंच फ्राइज एक जगह पे देख ली कि यार निशा चलो आज तो मज़ा आ गया, फ्रेंच फ्राइज कोई बना रहा है, तो देखा तो ऑयल जो है वो बीफ ऑयल यूज़ कर रहे हैं। मतलब बोला आप फंस गए वापस। तो वेजिटेरियंस के लिए पूरा डिफ़िकल्ट था, लेकिन सर्वाइव ना हो सके ऐसा कोई दिमाग में था नहीं, क्योंकि हम जो माउंटेनियरिंग वाले रहते हैं वो क्रेज़ी रहते हैं। आपने देख लिया है कि क्रेज़ी पीपल हैं। हम ए प्लान बनाते हैं ना कि यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसमें बी प्लान की कोई गुंजाइश नहीं रहती। बी प्लान हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। यहाँ से लंदन का प्लान किया है तो लंदन ही जाना है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मुड़ के वापस वाघा बॉर्डर से इंडिया आ गए। ओके, तो ये फूड का आपको बताया। फिर अभी सेकंड आया वीज़ा का। तो वीज़ा के अंदर एक तो साइकिलिंग एक्सपीडिशन, और वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया हो ऐसा रूट इसने चूज़ किया। तो मेरे अंदर तो टास्क ही टास्क थे, हर मिनट का एक टास्क नया आता था, क्योंकि किसी ने किया नहीं। किसी ने किया हो तो यूट्यूब से कहीं से देख देख के आप प्लान कर सकते हैं। तो वीज़ा का प्लान किया। पहले फर्स्ट चाइना का वीज़ा लिया। चाइना का वीज़ा होता है इंडियंस के लिए होता है काठमांडू से। तो हमें था कि काठमांडू में जाएंगे और चाइना का वीज़ा 5 डेज़ में मिल जाएंगे, 5 दिन काठमांडू रुकना पड़ेगा, उसके बाद तुरंत हम निकल जाएंगे चाइना के लिए। तो वीज़ा अप्लाई किया, वहाँ पे एजेंट रखना पड़ता है। तो चाइना वालों ने मेल किया एजेंट को कि ये लोग तो बॉर्डर से जा रहे हैं, तो सारे वीडियो फुटेजेस हमारे लेके जाएंगे, तो इनको परमिशन नहीं देंगे। तो जो हिडन जो दिक्कतें आ रही है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ ट्रैवलिंग ये वीज़ा के रिगार्डिंग।
फिर से इन्होंने मेल किया कि वो लोग कैमरा बंद रखेंगे, कुछ भी उन्होंने रीज़न दे दिया। तो कुछ भी करके हमारे पास वीज़ा आया। वीज़ा आने के बाद एंट्री हो गई हमारी। एंट्री हुई तो एंट्री में भी थोड़ी दिक्कत, एक्चुअली उनका रूल्स, रोबोटिक दुनिया है उनकी पूरी, उनको जो भी काम, उनसे सीखने लायक बहुत चीज़ है चाइना से। उनको एक काम कोई भी दे दिया किसी को, बंदे को, कि आपको ये काम करना है, वो दूसरा काम नहीं करेगा। एक बंदे को पासपोर्ट देखना है तो वो गाड़ी चेक नहीं करेगा, और जिसको गाड़ी चेक करना है वो पासपोर्ट नहीं चेक करेगा। अपने इंडिया में क्या है कि एक काम सब करते हैं। तो मैं तो इसी की हर टॉपिक पे बोलता हूँ ये चीज़, हर सेशन में बोलता हूँ कि एक काम करो लेकिन उसको कंप्लीट कर लो, क्लियर करो, तो उसमें 100% हम देख पाएंगे। ओके, तो वीज़ा का मामला हुआ और मैप रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हुआ, वीज़ा कैंसिल हुआ, वापस थ्रो कर दिया नेपाल में, वापस वीज़ा लिया और वापस वीज़ा लेके मैं अंदर एंटर हुआ। ये पॉलिटिकल मैटर में मैं ज़्यादा अंदर घुसता नहीं, लेकिन आखिरकार हमने चाइना के अंदर एंट्री ले ली। इतना ब्यूटीफुल चाइना कि जैसे अपना इंदौर, नेट एंड क्लीन, अभी बात हुई, कहीं पर भी कोई भी कचरा नहीं, और इतना कचरा डालते हो तो भी फाइन। तो पूरा चाइना क्रॉस किया, चाइना का वीज़ा हो गया था। उसके बाद सेंट्रल एशिया का वीज़ा 2-3 ऑनलाइन भी है। कजाकिस्तान का जो है वो ऑन अराइवल है अब 14 दिन के लिए इंडियंस के लिए। रशिया का वीज़ा हमने नेपाल से ही ले लिया था, स्टिकर वीज़ा। लेकिन रशिया के बाद यूरोप का जो था वो हम कब पहुंचने वाले रशिया वो फाइनल नहीं था, तो यूरोप का और यूके का वीज़ा लेना पॉसिबल यहाँ से इंडिया से नहीं था। लेकिन वहाँ रशिया, मॉस्को जाके मालूम पड़ा कि इंडियन सिटीजन को तो उनको अपने मदर कंट्री से ही वीज़ा लेके आना है, बाकी आपको एंट्री नहीं मिलेगी, घुसने कोई नहीं देगा। ये आप ऐसे साइकिल लेके कहाँ उठ के आ गए। तो मॉस्को के अंदर जाके मिला कि दूसरा वॉर सिचुएशन, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, सबको मालूम है, बहुत टाइम से चल रहा है। तो वॉर सिचुएशन में सारी एम्बेसी ने सारे स्टाफ उठा लिए, सिर्फ इंडियन एम्बेसी वहाँ पे वर्क कर रही है, बाकी सारी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी निकल गई वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके हमें वीज़ा लेना है। सिर्फ एम्बेसी की बिल्डिंग है और एक पर्सन वहाँ पे रखा हुआ है, वो सिर्फ दुकान खोलता है और दुकान बंद करता है। तो इंडियन एम्बेसी में गए तो इंडियन एम्बेसी ने बोला कि आप यार साइकिल लेके यहाँ तक आ गए, चल के आ गए, वीज़ा कैसे करोगे आप लोग। तो टास्क हो गया, बोले कि मदर कंट्री से। मैंने बोला नहीं सर, हम तो यहीं से वीज़ा लेंगे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने भी हेल्प करना चालू किया, उन्होंने भी एक लेटर बना के दिया यूरोप एम्बेसी को, लातविया को, कि ये लोग आए हैं तो उनको सपोर्ट करो, कुछ वीज़ा दो। फिर इंडियन बिजनेस एलियंस वहाँ पे है, अपने इंडियंस है, उन्होंने, उनका भी एसोसिएशन है, उन्होंने भी एक पूरा लेटर बना के दिया, पूरा ऐसा ऐसा है। लेकिन आप देखो, कुछ काम अच्छा करते हैं तो लोग, पूरी दुनिया आपके ऊपर वॉच रखती है। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया का बेड यूज़ और गुड यूज़, हमारा जो सोशल मीडिया था पूरा, यूरोप के जो लातविया के एम्बेसी वाले थे वो पूरे रूट में चेक कर रहे थे कि ये लोग आ रहे हैं तो हम उनका वेलकम करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग वीज़ा अप्लाई तो करें यहाँ पे आके। वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा देंगे ना, वीज़ा अप्लाई तो करें। दूसरा, वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कोई नहीं दे रहा है, तो वो सारी दिक्कतें हो रही थी। एक हमने मेल, हम पेपर वर्क में मानते हैं कि मेल रूटीन करते हैं कहीं ना कहीं सब जगह पे। श्वेता मैडम को भी परेशान किया था, नहीं आप मेल से बात करो, मेल से बात करो। पूरा कॉन्वर्सेशन ऑन मेल, मतलब ओके, तो थोड़ा एविडेंस रहता है इसलिए। तो वहाँ पे वीज़ा जैसे ही अप्लाई किया, वो लोगों ने तुरंत वेलकम कर दिया कि आप लोग आ जाओ, आपका इंटरव्यू लेना नहीं है, आप तो हम वेलकम ही कर रहे हैं आपका। सिर्फ एक काम करो, आपने जो टिकट जो डाली है ना, जो वो फेक है, ओरिजिनल डालो उसमें। जो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो जो टिकट होती है ना, एयर टिकट, वो फेक डालते हैं। तो बोले कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो ये फेक टिकट क्यों डाली है। तो इंडिया, कोई भी आप जाते हो एम्बेसी में तो मोबाइल अलाउ नहीं होते, हमें मोबाइल अलाउ करवाए अंदर से। मैंने वहाँ पे फ़ोन किया हमारे जो पहचान वाले थे उनको कि कुछ भी करो, 2 टिकट हमें भेज दो कि हम यूरोप से एग्जिट हो रहे हैं, ऐसा उनका प्रूफ चाहिए। वीज़ा दे दिया एक ही दिन में
कि जो पॉसिबल नहीं था, मिरेकल था। सब लोग ऐसा बोल रहे हैं आज भी, जो हमारे से रशिया मॉस्को से कनेक्टेड है, वो बोले कि आपके साथ तो मिरेकल हुआ है। आज दिन तक हिस्ट्री में किसी को भी वीज़ा ऐसा मिला नहीं है, और हमें वीज़ा मिला है। तो एक वीज़ा रिगार्डिंग आपको मैंने बात कर दी, फूड, वीज़ा, और तीसरा आपका कुछ था सर रहना। ओके, रहना बहुत, ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि श्वेता मैडम अकेले का दिमाग नहीं है, पूरी फौज का दिमाग है। तो ये बहुत क्वेश्चन, बड़ी फौज है मेरी। ओके, तो ये क्वेश्चन इसीलिए अलग अलग सा है। रहना, तो रहना में नेपाल में तो बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे अपना इंडिया ही लगा हमें। चाइना के अंदर हर 30 to 40 किलोमीटर पर हमारी गाड़ी चेकिंग होती थी। हमें कुछ करना नहीं है, निशा साइकिल पे तो साइकिल पे आगे खड़ी रहेगी, पुलिस वाले रुकाएंगे। मेरे पास 24 आवर्स गाइड रहता है, उनका रूल्स है कि गाइड आपको रखना ही पड़ेगा। वो गाइड से ही कन्वर्सेशन करेंगे, मुझे सिर्फ उतर जाना है, वो गाड़ी चेक करके बोले गो तो फिर जाना है। जैसे ही जहाँ रुकना हुआ, 100 and 120 किलोमीटर रोज की साइकिलिंग हुई, वहाँ पे कहीं सिटी में जाना है तो रुकना है वहाँ पे। वो लोग डिसाइड करेंगे, 2 होटल आपको वो लोग देंगे कि 2 होटल है उसमें आपको रुकना है। तो गाइड क्या करेगा, सबसे महंगी होटल करेगा, सबसे महंगी होटल में वो रूम बुक करवाएगा, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही रुकने वाला है कहीं ना कहीं। जैसे ही हम वहाँ पे होटल पे पहुँचते हैं ना, तो पुलिस वाला हमारा पासपोर्ट लेके चले जाता है, और रोज़ मॉर्निंग में हमें पा देता है। तो समय तो टेंशन ही टेंशन मैन कि क्या है ये, पासपोर्ट क्यों लेके जा रहा है और वापस क्यों दे रहा है। लेकिन वो उसकी आदत हो गई थी। किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कई बार हमने पेट्रोल पंप पे जो छोटा सा कैफ़े होता है ना, वहाँ पे बैठे बैठे नाइट हमने गुजारी हुई है। ऐसा नहीं है कि पूरी ट्रिप हमने एंजॉय करके निकाली है। जो दिक्कतें आई वो आपको बता रहा हूँ। 400-500 किलोमीटर तक डेजर्ट है, कोई होटल, कोई कुछ रहने की व्यवस्था नहीं है। तो आपको 2-3 दिन कहीं ना कहीं ऐसा कैफ़े हो, वहाँ पे जाके बैठना पड़े, वहाँ पे टेबल पे बैठे बैठे सोना पड़े, समझो। मैं तो बाइक कार था, निशा को साइकिलिंग भी करनी है और रेस भी करना है ऐसे बैठे बैठे। तो देखो वुमन पावर, सब वुमन ही है, समझो। ओके, तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट क्या है कि मैं गाड़ी 10-15 की स्पीड से चला रहा हूँ पीछे पीछे। ओके, और माउंटेनियरिंग वाले कभी मोबाइल को छूते नहीं थे, वो पूरा मैं मोबाइल सीख गया, वीडियो निकालना, एडिटिंग करना भी सीख गया, सब कुछ। वो सिर्फ गाड़ी में चलते चलते। तो ये प्राउड मोमेंट बहुत अच्छी थी। ये पूरी हमारी जर्नी देखी कि ये लोग पेट्रोल पंप पे रुक रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, समझो। लोगों ने कहीं ना कहीं बताया, कोई इंडियंस भी मिला, तो मैसेज आके पास ऑन हुआ। तो तास्कन में एक हमें रविंद्र सर मिले, उन्होंने तुरंत हमारी गाड़ी के ऊपर एक टेंट स्पॉन्सर्स दिया कि बोले एक काम करो, आप को मैं टेंट लगा के देता हूँ। तो उसके बाद थोड़ा रहने की व्यवस्था हमारी हो गई कि गाड़ी के ऊपर, हमारा जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसके ऊपर हमने टेंट लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पे रोक लिया, और एटलीस्ट बैठे बैठे नहीं लेकिन सोने की व्यवस्था उसमें हो गई थी। क्योंकि सीट को भी हम फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सीट में भी अंदर सामान इतना सारा पड़ा हुआ है, कपड़ा से लेके एक्स्ट्रा एक साइकिल थी, से सब कुछ। तो रहने का कहीं ना कहीं ऐसा हो गया। हाँ, यूरोप के अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं अपने इंडियंस पीपल मिले, तो उनके घर भी बहुत जगह पे इन्होंने इनवाइट किया और हमें वहाँ पे रुकवाया। लंदन में भी वही हुआ, लंदन में भी बहुत सारे इंडियंस पीपल मिले। हर जगह पे अपनी इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने हमें बहुत अच्छा वेलकम दिया और बहुत अच्छी तरह रखा कहीं ना कहीं। और सारे, एक आपको मैं बात बताऊं कि आप अच्छे हो तो पूरा जग, पूरी दुनिया, वर्ल्ड अच्छा है, समझो। यहाँ से इंडिया, वडोदरा से लेके लंदन तक एक बंदा हमें न्यूसेंस नहीं मिला, एक भी सिंगल पर्सन। ठीक है, हमारी जर्नी मॉर्निंग में स्टार्ट होती थी और इवनिंग में 5 बजे या 4-5 बजे आसपास हम ख़त्म करते थे, लेकिन एक सिंगल बंदा हमें न्यूसेंस नहीं मिला। जैसे कल हम आ रहे थे बड़ौदा से यहाँ तक, तो लोग बोल रहे हैं कि बीच में नाइट जर्नी नहीं करनी चाहिए, मैं फियरलेस हूँ, मैं टेंशन रखता ही नहीं कि हमें कोई बुरा मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया हुआ है। तो ये वीज़ा, फूड, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। थैंक यू। हाँ, एक मैं किर्गिस्तान का एक थोड़ा किर्गिस्तान एंट्री, चाइना एग्जिट होते हैं ना, तो आपको किर्गिस्तान के अंदर उनकी बॉर्डर ओनली 2 आवर्स खुलती है, और चाइना वालों ने एग्जिट में मुझे 5 घंटे बिठा के रखा।
इतना सारा पूछताछ सब कुछ, तो 5 घंटे मुझे बिठा के रखा। तो किर्गिस्तान की बॉर्डर क्लोज हो गई, बंद हो गई। तो वो 2 बॉर्डर के बीच आपको मिनिमम 24 आवर्स रुकना होता है। तो जैसे ही साइकिल आगे गाड़ी पीछे, बार बार मैं क्यों बोलता हूँ कि साइकिल आगे गाड़ी पीछे, ये मोमेंट देख के वहाँ के एक आर्मी वाला आया, हमें बुला रहा है कि आगे आ जाओ आप। तो मैंने सोचा ट्रक की लाइन है, गाड़ी कोई है नहीं, तो हमें आगे बुला रहा है। वहाँ पे जैसे ही एंटर हो रहे समझो, तो उन्होंने वाईफाई देखे, हॉटस्पॉट देखे, हमारा वाईफाई क्लियर किया, हमारा इमिग्रेशन सब कुछ क्लियर करवाया। और 1 महीना चाइना के अंदर ऐसा लग रहा था हम कैदी बन गए। और वहाँ पे तुरंत उसने अपना मिथुन चक्रवर्ती गाना जिमी जिमी सॉन्ग करके वो वेलकम कर रहा है, डांस कर रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो ये मोमेंट बहुत मेरे लिए एक फ़नी मोमेंट और बहुत अच्छा था कि मुझे एंट्री ऐसा मिला समझो। और मैं टेंशन फ्री होगा तुरंत, क्या चलो इंडियन सॉन्ग बजने लगे अभी। अभी तक चाइना के सॉन्ग बजा रहा था मैं। निशा, आप जहाँ भी जाते हो पेड़ लगाते हो। अब आप रेगिस्तानों में भी जा रहे थे, तो वहाँ आपने ये अपनी पेड़ लगाने की जर्नी कैसे कंटिन्यू करी? ये बहुत मुश्किल था कि हर एक कंट्री में हम लोग जाएं। सबसे पहले तो स्टडी करनी पड़ती है कि वहाँ पे कौन से ट्रीज़ हम लोग लगा सकते हैं और मतलब उस सीज़न में कौन से ट्रीज़ लगा सकते हैं, क्योंकि लगभग हमें कोल्ड वेदर हर जगह में मिला। फिर जहाँ पे भी हम लोग जाते थे तो रेगिस्तान पे तो हम लोग अपनी तरफ से पेड़ नहीं लगा सकते, और अदर कंट्रीज़ में मेन चीज़ ये भी है कि हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी खोद के कहीं पे भी पेड़ नहीं लगा सकते, हमें वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। तो जहाँ जहाँ पे सिटीज़ थी वहाँ पे हम लोगों ने लोगों से कनेक्ट किया और हमें ऐसे लोग मिले, अच्छे लोग मिले, स्कूल्स, कॉलेजेस, उन लोगों से कनेक्ट किया। उन लोगों को हम लोगों ने अपना पर्पस बताया, चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं। और वहाँ पे हम लोग पहले से सर्च करके जाते थे कि कौन सा ट्री हम लोग लगा सकते हैं, तो वो ट्री लेके जाते थे और उनके साथ मिलके, वहाँ के बच्चों के साथ मिलके ट्री प्लांटेशन हम लोग हर जगह पे करते थे। सब जगह आपको सक्सेस मिली ट्री प्लांटेशन के लिए? हाँ, सब जगह पे सक्सेस मिली। कुछ जगह पे ऐसा था कि जहाँ पे हम लोग बाहर आउटडोर ट्री प्लांटेशन नहीं कर सकते, जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर है, वो कजाकिस्तान और रशिया में था। तो वहाँ पे हम लोगों ने वो जो ट्रीज थे छोटे छोटे लिए और उनको बड़े पॉट्स में लगा के इंडोर रखा, और जो लोगों के वहाँ पे लगाए थे उन लोगों ने हमसे प्रॉमिस किया कि वो समर्स में उसको आउटडोर लगाएंगे और उसको ग्रो करेंगे। तो ऐसे करके हम लोगों ने जहाँ पे आउटडोर पॉसिबल नहीं था वहाँ पे इंडोर ट्री प्लांटेशन ज़रूर किया। लंदन जब आप पहुँच गए और फाइनली ब्रिज पर आपने तिरंगा लहराया, क्या सोचा? मतलब उस समय क्या आपकी फर्स्ट फीलिंग थी? कि क्या आपको अच्छा लग रहा था, एक्साइटेड थे? क्या आपने फर्स्ट किया? वो मोमेंट फिर से एक मतलब आंखों में आंसू ला देने वाला मोमेंट था, क्योंकि किसी को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि हम वहाँ पहुँच गए हैं। इवन हमें भी खुद को बिलीव नहीं हो रहा था कि हम वहाँ पहुँच गए हैं। बहुत स्ट्रगल थी, बहुत स्ट्रगल के बाद जब हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पे अपना तिरंगा लहराया, तो वो ऐसा मोमेंट था कि किसी ने अचीव नहीं किया है और हम वहाँ पे पहुँचे हैं फाइनली। जो हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन था, फाइनली जहाँ पे हमें हमारी राइड पूरी करनी थी, हम वहाँ पहुँच चुके हैं लंदन। तो लंदन ब्रिज पे तिरंगा लहरा के सबसे पहला हम लोगों ने काम किया था वो भगवान का आशीर्वाद लेने हम लोग नेस्डेन स्वामीनारायण मंदिर गए, और अपनी जो राइड है वो फाइनली हमने नेस्डेन स्वामीनारायण मंदिर में भगवान को जल अर्पण करके और वहाँ की जो सभा थी वहाँ पे अपनी जो राइड थी वो पूरी की थी फाइनली। 1 मिनट, इसमें भी एक मोमेंट है, और वो मोमेंट मैंने माइक क्यों ले लिया, वो मोमेंट इंदौर से जुड़ा हुआ है। ओके, उस टाइम पे लंदन पहुँचे, जब जो क्लोथ हमने पहने थे वो आपके इंदौर के थे, प्रतिभा सिंटेक करके कंपनी है, उन्होंने हमें स्पॉन्सर्स किया था और वो क्लोथ्स इंदौर के थे। तो वो मोमेंट हमारे साथ इंदौर वाली मोमेंट और लंदन वाली मोमेंट साथ में जुड़ी है, इसलिए मैंने ये बताया आपको। स्पेशल डिज़ाइन किया गया था ट्राई कलर का, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा लास्ट में। तो ट्राई कलर का है वो, इंदौर, मेड इन इंदौर है। अगेन इंदौर इज़ अ प्राउड सिटी। थैंक यू सो मच। एक क्विक रैपिड फायर करते हैं निशा। एनी वन कंट्री विच वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टू क्रॉस? चाइना। जब आप साइकिल चलाते हो बहुत मोनोटोनस हो जाता होगा आई बिलीव, तो कोई गाना या कोई फीलिंग, मतलब कुछ गुनगुनाते हो क्या?
लक्ष्य को हर हाल में पाना है। वो एनसीसी से सीखा था और अभी तक हर एक मोमेंट जहाँ पे भी टफनेस आती है, जहाँ पे भी खुद को ऐसा फील होने लगता है कि मैं थक रही हूँ, वहाँ पे वो गाना मेरे मन में चलता है। सुनाओगे? मतलब एक ही लाइन मुझे आती है, मुझे गाना वैसे ज़्यादा आते नहीं चलेगा। है, सिर्फ लक्ष्य को हर हाल में पाना है, यही लाइन मेरे दिमाग में चलती थी। और उसके साथ साथ एक और गाना मेरे दिमाग में चलता था, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। वेरी गुड। अगर आप किसी आइकॉनिक फिगर या किसी को अपना आइडल बना सकते हैं या सोचते हैं कि मेरी साइकिल यात्रा उसकी वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो कौन है वो? मोदी जी। हम लोग जब ये राइड लेके निकले थे चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, और हम लगभग राजस्थान ही पहुंचे थे और मोदी जी ने ये स्लोगन दिया था, एक पेड़ माँ के नाम। वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। क्या कभी आपकी साइकिल ने आपका विरोध किया, पंचर हो गई, बार बार चेन उतर गई, कुछ ऐसा हुआ? सिर्फ एक ही मोमेंट, वो सिर्फ इंडिया में ही हुआ था। लखनऊ में, मतलब कानपुर से लखनऊ के बीच में, तो वहाँ पे ही ऐसा हुआ था कि साइकिल बार बार पंचर हो रही है। बट उसके अलावा भगवान की दया से ना हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत कभी पूरी इतनी बड़ी जर्नी में आई, और ना ही साइकिल में। एक बार वो पंचर रिपेयर करने के बाद पूरी जो जर्नी थी उसके बाद की 6 महीने की, वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी रही। पूरी जर्नी में एक बार साइकिल पंचर हुई? हाँ, ओनली एक बार। वाह। और गाड़ी भी एक बार भी पंचर नहीं हुई? गाड़ी तो एक बार भी पंचर नहीं हुई। वाह। अच्छा, आपकी जर्नी के दौरान आपने इतने देश ट्रैवल किए, कहीं की कोई बात या कोई चीज़ जो आपको इंस्पायर कर गई हो कि ये मुझे अपने देश लेके जाना है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं छोटी छोटी, बट एक मेन चीज़ ये है कि अदर कंट्रीज़, इवन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे भी हमारा जो कल्चर है, हमारे जो एथिक्स है कि लड़कियां जब कुछ अच्छा करती है तो शगुन देते हैं ना, वैसे उज़्बेकिस्तान में एक मोमेंट मेरे साथ ऐसा था कि हम लोग जस्ट वेट, मैं पहुंची थी, मैंने नीलेश सर को बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वो देख रहे थे कि कौन सी जगह जो है वो क्लीन होगी, वहाँ पे रेस्टोरेंट में है या नहीं है। मैं वहाँ खड़ी थी और एक बूढ़े से अंकल आए, 65-70 ईयर्स के, वो आए, उन्होंने देखा गाड़ी और मुझसे जस्ट इशारे में पूछा कि आप इसके साथ हो गाड़ी के? तो मैंने भी इशारे में हाँ किया, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था। उन्होंने मेरे हाथ में चुपचाप 1 लाख रुपीज़ का नोट, उज़्बेकिस्तान की करेंसी बहुत बड़ी बड़ी है, 1 लाख 2 लाख के नोट वहाँ पे होते हैं, तो आपको कुछ भी खरीदना हो तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो उनको देने पड़ते हैं। तो उन्होंने मेरे हाथ में 1 लाख का नोट दिया और वो चले गए चुपचाप, कुछ नहीं बोला। जब हमने वहाँ के जो छोटा सा ढाबा था उसके और जो वहाँ पे बैठे थे भैया, उनको पूछा ट्रांसलेटर से कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे जब लड़कियाँ कुछ अच्छा करती है तो उनको शगुन देते हैं। तो वो मोमेंट था कि सच में दिल छू गया कि यहाँ पे भी लोग उस कल्चर को फॉलो करते हैं। एक्सपेडिशन के टाइम आई एम श्योर कि बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मिलती नहीं होंगी, जैसा कि आप बैग में जो भी रखते थे, तो कौन सा ऐसा फेवरेट फूड था जो आपने मिस किया, जो आते ही नीचे सबसे पहले शायद खाया हो? दाल बाटी। दाल बाटी। उसके अलावा और क्या मिस किया क्लाइंबिंग करते समय, जो भी आपको दिन लगे? पेरेंट्स को मिस किया या क्या आपने मैक्सिमम मिस किया फूड के अलावा? फूड के अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे मैंने मिस की। वो फैमिली को तो हर कोई मिस करता है, मैंने भी बहुत मिस किया अपनी फैमिली को। उसके साथ साथ अपना जो इंडियन कल्चर है, इंडियन फूड है, वो बहुत मिस किया, क्योंकि अदर कंट्रीज़ में वो फूड मिलना और वो कल्चर मिलना सबसे मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। सिर्फ एक रशिया था जहाँ पे हमें ये कल्चर थोड़ा बहुत मिला, क्योंकि वहाँ के लोग अपना कल्चर अभी अपनाना शुरू कर रहे हैं, तो वो एक कंट्री थी जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत अपना कल्चर मिला। बाकी अपना इंडियन कल्चर और अपने इंडिया की तरह ये जो रंग बिरंगे कलर हैं, ये पूरी इतनी लंबी ट्रिप में हमने सिर्फ ब्लैक एंड वाइट जर्नी देखी है। सच में ब्लैक एंड वाइट या ग्रे यही दिखा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा, कलर्स कहीं नहीं दिखे। आपका फेवरेट पास टाइम, मूवी, एक्टर? दंगल।
दंगल मूवी। सर ये क्वेश्चन आपके लिए, क्या पूरी जर्नी में, एवरेस्ट की जर्नी या साइकिलिंग की जर्नी में आपको कहीं ऐसा लगा कि निशा परेशान हो गई, अब थक गई, अब मुझे उसको पकड़ के मतलब आगे बढ़ाना है, एंड भले ही वो कितनी भी तकलीफ में थी बट आपने वो हौसला नहीं जाने दिया इसका? एक्चुअली ये आंसर भी निशा ही दे पाएंगी, मुझे दिया है, लेकिन कि ये मोमेंट कब आया था और कैसे आया था। एक्चुअली वहाँ पे माउंट मनासलू पे जो उसने बताया था कि वो स्टक हो गई थी 7000 पे, तो वो मोमेंट रिटर्न में आने के बाद थोड़ा डीमोटिवेशन वाला रहता है, क्योंकि उसके साथ उसके जो कलीग्स थे उसको डेथ होते हुए उसने देखा था। तो उस मोमेंट पे मैंने उसको थोड़ा पुश आउट किया था कि निशा ये लाइफ की जर्नी है, लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहेगी, आगे बढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि लोग फेलियर को, इंडिया की बात करूँ तो फेलियर को कोई नहीं पूछता, अब सक्सेस हो तो सब लोग पूछते हैं, जो आज बैठे हैं वो सक्सेस के हिसाब से ही बैठे हैं। ओके, तो एज अ गर्ल्स उसको दिमाग से थोड़ा ये सब निकालना था, तो 15-20 दिन का टाइम मुझे लगा था, लेकिन वो क्लियर कर दिया और उसके बाद उसकी प्रिपरेशन चालू हो गई थी। वर्कआउट तो छोड़ा नहीं उसने उस टाइम पे भी, लेकिन दिमाग में ये था कि सर अभी आगे माउंटेन्स में मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, पेरेंट्स भेजेंगे नहीं भेजेंगे, वो सारी दिक्कत इसके दिमाग में चल रही थी। तो सारी चीज़ें मैंने उसको दिमाग में थोड़ा क्लियर किया था उसमें, और उसको हौसला बढ़ाया था थोड़ा। ग्रेट टीचर इज सो मच रिक्वायर्ड। वाओ। सो नाउ कैन वी ओपन द सेशन फॉर अ क्विज? एक मिनट, थोड़ा पीछे जो भैया है वो लाओ ना, क्योंकि मेरे रूम में वो रह गया है वो पेपर्स। आप अपनी मर्जी से पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, 1-2 मिनट लगेगा। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं एक मोमेंट आपको, 2 मोमेंट्स ऐसी बताना चाहूँगी कि इस जर्नी में, साइकिलिंग की जर्नी में ऐसी 2 मोमेंट्स आई कि जिसमें मुझे लगा कि लिटरली भगवान ने सिर्फ ब्लेस करने के लिए उन लोगों को मुझे भेजा था। 2 ओल्ड एज लेडीज़, एक मैं काठमांडू में थी और मेरा बर्थडे वहाँ पे था, तो जो होटल वाले थे उन लोगों ने बोला कि मैम इवनिंग में आपका, हम लोग छोटा सा एक प्रोग्राम रख रहे हैं ट्री प्लांटेशन का, तो आप लोग प्लीज़ आइएगा। और एक यूएस के थे बट इंडियन थे, यूएस सिटीजनशिप वाले थे, वो दीदी और उनकी मदर, वो बा हमें वहाँ मिले, उनसे बात हुई, वो बहुत खुश हुए कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं देख के, और उन लोगों ने हमें इवनिंग में ज्वाइन किया, उन्होंने बहुत विशेष दी। उसके बाद वो लोग कैलाश मानसरोवर जाने वाले थे, उनकी लाइफ में वो 3 बार ट्राई कर चुके थे कैलाश मानसरोवर के लिए, बट उनको परमिट ही नहीं मिला। ये 4th टाइम था जब वो अपनी बेटी के साथ आई थी और उनको परमिट मिला, वो कैलाश मानसरोवर गए। हमें ऐसा था कि जब वो रिटर्न आएंगे तो हम लोग उनको बॉर्डर पे, नेपाल चाइना के बॉर्डर पे मिलेंगे, लेकिन हम नहीं मिल पाए। उसके बाद जब हम चाइना चले गए, हमने एकदम से अचानक से एक ही दिन हमारा इंस्टाग्राम वहाँ पे वर्क किया, क्योंकि चाइना में कोई भी इंडियन ऐप या कोई भी गूगल, कोई भी सोशल मीडिया वहाँ पे काम नहीं करता, उनके खुद के ऐप्स है। तो उस दिन हम लोगों ने क्या बोलते हैं, VPN से अपना सोशल मीडिया, सिर्फ एक ही दिन VPN चला था, वो भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। उस दिन जब हमने VPN से सोशल मीडिया चलाया, एकदम से स्क्रॉल किया तो देखा कि वो दीदी ने बाकी फ़ोटो लगाई है ओम शांति लिख के। तो वी आर सो सैड कि ऐसा मतलब अचानक से हो गया। आज भी उनकी जो मतलब उनका जो फेस है वो आंखों के सामने रहता है। तो ऐसा लगा कि वो हमें सिर्फ ब्लेस करने के लिए ही हमें आए थे। वो मानसरोवर गए और वहाँ पे मानसरोवर पे ही उनकी डेथ हो गई थी। और दूसरा मोमेंट ये था कि जब हम कजाकिस्तान में थे ना, तो एक सर मिले, इंडियन थे, फिरोज सर। उन्होंने हमारी फ़ोटो उनकी स्टोरी में लगाई, और उनके स्कूल टाइम की एक टीचर थी जो अभी US में रहती थी, लेकिन उन्होंने दुबई में स्कूलिंग की थी, तो इंडियन थी बट दुबई में वो पढ़ाती थी। उनको पूछा कि ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिली, मैं इसकी जर्नी डे 1 से फॉलो कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैम ये अभी कजाकिस्तान में हमारे साथ अतराव में रुकी हुई है, हमारे पास ही। उन्होंने बोला कि मुझे बात करनी है उससे, बोले कि कल सुबह जाऊंगा तो आपकी उनसे बात करवा दूंगा। वो US में 84 ईयर्स की मैम है, उन्होंने पूरी रात सोया नहीं है,
वो सिर्फ इसी इंतज़ार में थे कि ये कब जाएगा और मेरी बात करवाएगा। सुबह जब 11 बजे वो आए, उन्होंने बोला निशा ऐसे ऐसे है, मुझे मेरी मैम आपसे बात करना चाहती है। उन्होंने फ़ोन पे जब वीडियो कॉल पे बात की, उनका फर्स्ट सेंटेंस यही था कि बेटा कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, बैक ऑफ नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। और जब रशिया पहुँचे, उनसे एक बार हमारी फ़ोन पे बात हुई। वापस आने के बाद मैंने उनको कॉल किया कि मैं उनको बता देती हूँ कि ये जर्नी हमारी पूरी हो गई है, बट मैंने उनको बहुत कॉल किए, उनको कॉल लग नहीं रहे हैं, मैसेजेस जा नहीं रहे हैं। मैंने फिर सर को ही कॉल किया, मैं कहा सर ऐसे ऐसे, तो सर ने बताया कि वो ऑफ हो गए निशा, जब आप रशिया क्रॉस किए थे ना तो मैम ऑफ हो गए। तो लिटरली ऐसा लगा कि भगवान ने हमें ब्लेस करने के लिए ही उनको भेजा था। भगवान का हाथ कहीं ना कहीं हमारे साथ था। Absolutely. Let's open the session for Q&A. Yes, please. निशा, आप फिक्की फ्लो इंदौर में आए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात रही है। मैं पूछना चाह रही हूँ सर आपसे भी और निशा से भी, ये पूरी जो जर्नी है ये इसका एक्सपेंस कौन भरता है या किसने भरा? रादर आपको स्पॉन्सरशिप मिला, आपको सपोर्ट मिला कि कहाँ से हुआ? मतलब कोई सस्ता जर्नी तो नहीं रहा होगा। ये जो जर्नी था इसका हमारे पास स्पॉन्सर नहीं था। हमारे पास साइकिल का स्पॉन्सर था, क्लॉथ का स्पॉन्सर था, बट स्पॉन्सर ड्यू टू सम रीजंस बैक ऑफ हुआ था, तो हमारे पास पैसे फंड्स नहीं थे। हमें क्राउड फंडिंग और जहाँ जहाँ पे हम जाते थे वहाँ के लोग सपोर्ट करके आगे बढ़ा रहे थे, तो ये जर्नी उनके सपोर्ट से पूरी हुई है। माय गॉड। हाय निशा, हेलो सर, वेलकम। आई वांटेड टू नो कि आपके पेरेंट्स का ये वार्तालाप में कोई हमें एक्सपीरियंस शेयर कि आपके पेरेंट्स का कितना योगदान था। आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स वगैरह जो आपके उन ये 210 दिन प्लस जो आप एवरेस्ट सबमिट किए थे उसके वो जो दिन थे उसमें उन लोगों का कितना सारा कंट्रीब्यूशन होगा इमोशनली? मैम, पेरेंट्स की परमिशन के बिना ये सब पॉसिबल नहीं होता है। घर वालों का सपोर्ट कहीं ना कहीं चाहिए होता है, तो वो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं ये सब कर पाई, और मेरे गुरु ने मुझे ट्रेन किया तो ये सब पॉसिबल हो पाया। यस अंकिता। हाय निशा, आई एम अंकिता। तो मैं सबसे ज़्यादा पहले तो अमेज्ड हूँ सीइंग योर डिटर्मिनेशन, ग्रिट। आई विश दिस फोरम वाज ओपन फॉर आवर किड्स ऑल्सो, तो और अच्छा होता, बिकॉज दे एक्चुअली नीड दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि मैं मदर हूँ एंड एक एजुकेशनिस्ट हूँ, तो मेरा सवाल इसके अराउंड है। पहला तो आप मास्टर्स हैं मैथमेटिक्स में, यू टोल्ड, तो हाउ योर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स आपको कैसे हेल्प करती थी आपके इस पूरे एक्सपीडिशन में? कहीं ना कहीं आप डाइट भी कैलकुलेट कर पाते होगे, रूट प्लानिंग कर लेते होगे, या फिर मे बी सम वेदर प्रेडिक्शंस, कैलकुलेशंस। सो क्या आपका मैथमेटिक्स में मास्टर्स जो था वो इसमें हेल्प आउट करता था? मतलब आपकी व्हाट आई मीन टू से कि क्या थ्योरेटिकल नॉलेज आपको इस प्रैक्टिकल चीज़ में हेल्प करी थी कि नहीं करी थी? नंबर 2, बीइंग अ मदर, अभी रिसेंटली मैंने एनकाउंटर किया है कि मेरे टीनेजर बच्चों को भी साइकिल की तरफ रुझान हुआ है, तो आप कौन सा ब्रांड या कौन सी साइकिल रिकमेंड करेंगी, या इक्विपमेंट्स या गियर्स जो हम उनको बता सकते हैं? और एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा जेनरिक है, बिकॉज म्यूज़िक की बात की थी श्वेता जी ने, तो अगर साइकिल गाती तो आप दोनों कौन सा गाना गाती मिलके? So these are 3 questions. I have others also, but I think 3 are enough. मेरी साइकिल का नाम ही मैंने जमकुड़ी रखा है, और जमकुड़ी के ऊपर एक गुजराती में गाना है, तो अगर आप लोग लिखेंगे ना जमकुड़ी, तो एक राजा की 100 रानी जमकुड़ी रे जमकुड़ी,
तो मेरी साइकिल का नाम ही जमकुड़ी है। वाज अमेजिंग। दूसरा कि साइकिल की बहुत सारी ब्रांड्स है, आपको प्राइस के हिसाब से बच्चे को किस लेवल की आप प्रिपरेशंस करा रहे हो। मतलब बिगिनर्स के लिए, मतलब बिगिनर है, बिगिनर्स के लिए तो डिकैथलॉन की साइकिल्स भी अच्छी है, क्योंकि मैंने खुद भी एज अ बिगिनर डिकैथलॉन की साइकिल ही यूज़ की है। एकदम बेसिक वाली 15 से 20 हज़ार की जो साइकिल आती है वही यूज़ की है, और उसी पे प्रैक्टिस मैंने की है एवरेस्ट के टाइम पे। ये साइकिल तो मैंने सिर्फ इस जर्नी के लिए परचेज़ की थी। इस जर्नी से पहले भी मैंने जो प्रैक्टिस की है वो डिकैथलॉन की 15,000 वाली साइकिल पे ही की है। सुपर। आई थिंक मनी इज़ नॉट रिस्ट्रिक्शन फॉर सच अमेजिंग टैलेंट। और एक जो पहला क्वेश्चन था आपको मैथमेटिक्स वाला, मैथमेटिक्स में मैम इसको जर्नी को प्लान करते वक्त निकलने से पहले ही बहुत सारी माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसमें हर एक दिन का डिस्टेंस करना कैलकुलेट कि हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जाएंगे और वहाँ पे स्टे के लिए कैसे मैनेज करेंगे। और जब हमारे पास, मैंने जैसे बताया कि हमारे जो स्पॉन्सर थे उन्होंने बैक ऑफ किया था, तो फाइनेंशियली हर एक चीज़ को मैनेज करना कि कैसे हम फूड को मैनेज करें, कैसे हम स्टे को मैनेज करें, कितना फंड हम किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा मिनिमम से मिनिमम खर्चा हो सके, तो वो सब में बहुत यूज़फुल रहा है। थैंक यू सो मच आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाने के लिए। एंड जैसे भी मेंशन किया गया था कि काश बच्चे भी यहाँ पे होते, तो बीइंग द यंगेस्ट पर्सन आई गेस यहाँ पे अभी, आई फेल्ट वेरी इंस्पायर्ड। जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि आपकी जो जर्नी थी दैट वाज बेस्ड ऑन अ कॉज, आपको और अवेयरनेस फैलानी थी और आपने बहुत सारे अलग अलग माइंडसेट के लोगों से बातचीत की होगी, अलग अलग सोच रखते होंगे लोग। तो ऐसे डेली लाइफ में भी बहुत बार होता है कि हमें कोई चीज़ की अवेयरनेस फैलानी होती है, कुछ बताना होता है, हमारे ओपिनियंस पुट अक्रॉस करने होते हैं। तो ऐसी कौन सी टिप्स आप दे सकते हैं जिससे आप लोगों को आपके आइडिया की तरफ और अट्रैक्ट कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, या कोई ऐसी स्टोरी है आपके पास जिसमें आपने लोग हेजिटेंट थे आपकी बात सुनने के लिए लेकिन आपने उनको कन्विंस किया? एक ही चीज़ है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है। हम वैसे किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप मशीनरी मत यूज़ करो, आप घर में एसी मत लगाओ या गाड़ी मत चलाओ, फ्रिज मत यूज़ करो। एक ही चीज़ ऐसी है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम लोग काम करें तो उससे जो है वो टेम्परेचर भी कम हो सकता है और धीरे धीरे ये जो एसी है ये सब चीज़ें कम हो सकती हैं। वो ट्रीज़ है, क्योंकि ट्री ही एक ऐसी चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और प्योर ऑक्सीजन हमें देता है। बाकी मशीन्स अगर हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए तो मशीन से सिर्फ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब वो नहीं कर पाती है मशीन्स। तो ट्रीज़ ही एक ऐसे है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा, इसका एक एग्जांपल राजस्थान का है कि राजस्थान में एक पहले पूरा रन था और रन में एक आदमी ने प्रण लिया कि मुझे यहाँ पे ट्री प्लांटेशन करना है और आज वहाँ पे पूरा जंगल है। उसने पहले उस एरिया को खोद के वहाँ पे एक लेक बनाई। लेक में उसने पहले बारिश के मौसम में उसमें पानी भरने दिया, फिर धीरे धीरे ट्री प्लांटेशन शुरू किया और आज वहाँ पे पूरा जंगल है। और उस एरिया का टेम्परेचर बाहर के एरिया से आप कंपेयर करो तो 4 डिग्री, मिनिमम 4 डिग्री का डिफरेंस दोनों टेम्परेचर्स में मिलता है। तो आप वहीं से एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर 4 डिग्री का डिफरेंस है और हम वही ट्री प्लांटेशन को और बढ़ा दें तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर डाउन चला जाएगा और हमें जो है मशीन्स की जो ज़रूरत हमें ज़्यादा हो रही है, जैसे माउंटेन्स में कोई फ्रिज यूज़ नहीं करता, एसी यूज़ नहीं करता, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी उन चीज़ों को यूज़ करना अपने आप ही मतलब अंदर से ही वो कम होता चला जाएगा।
Then we'll have quiz. The last question, please. Hi निशा जी, इट वॉज वेरी अमेजिंग लिसनिंग टू योर स्टोरी. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आई थिंक हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारे जो मोटिवेशन लेवल होता है वो अप एंड डाउन होते हैं. सम डेज वी फील मोटिवेटेड, सम डेज वी डू नॉट. सो हाउ डू यू स्टे कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड, लाइक एवरी डे डेली मोटिवेशन हैक्स या कुछ ऐसा आप करते हो, जर्नलिंग हो गया या एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड एवरी डे? मुझे जो कोई भी मिलता है मैं उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी लेती हूँ. कोई भी मेरे से, मतलब मैं किसी से मिल रही हूँ और उसकी जो भी थॉट प्रोसेस है, वो मेरे से जो भी बात कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें मैं खुद ढूंढती हूँ. जैसे कि एक छोटी बच्ची मुझे मिली थी 3 साल की. उसकी मदर ने बोला कि ये जब आपने साइकिल जर्नी शुरू की थी और इसने इंस्टाग्राम पे आपकी रील देखी थी, इसने जिद की कि मुझे भी साइकिल खरीदनी है और आज ये घर से आपको मिलने, ये मथुरा की बात है, मथुरा नहीं, ये पाली की बात है, राजस्थान में. वो वहाँ अपने घर से, मतलब जो भी डिस्टेंस होगा, बट वो बच्ची 3 साल की बच्ची वहाँ से साइकिल लेके आई और उसने बोला कि दीदी मुझे आपसे मिलके इसलिए अच्छा लगा कि मुझे लीची का फ्रूट पसंद है और आपका कोर्स देखते हुए मेरी मम्मी ने मुझे लीची का फ्रूट जो पेड़ है वो मेरे घर पे लगाने की परमिशन दी. और मैंने, वो 3 साल की बच्ची इतना सब कर रही है, तो मुझे तो वहाँ से हर एक दिन जब कुछ ना कुछ ऐसे कोई लोग मिलता है तो मोटिवेशन मिलता रहता है. हम क्विज शुरू करें. नेक्स्ट मिशन अभी मतलब अंडर प्रोसेस है, अभी पूरा प्लानिंग नहीं हुआ है, तो उसके लिए अभी काम करना बाकी है. अभी क्वेश्चंस आपके लिए हैं, मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए. देखो आपके क्वेश्चंस पे आप लोगों को प्राइज मिलने वाले हैं, ठीक है? जो भी क्वेश्चंस के सही जवाब देंगे उनको प्राइज मिलेंगे. 10 ही क्वेश्चन है. सब लोग हाथ रेज करना प्लीज, और जिसका सही आंसर होगा उसको इनाम मिलेगा. मेरा फर्स्ट स्कूलिंग कहाँ पे हुआ था? आप रेड ड्रेस में कहाँ पे? सिटी. एग्जैक्ट सिटी. पास. गुड, इनका आंसर एकदम सही है. It's coming. Next question. Get ready. डेट ऑफ माउंट एवरेस्ट समिट. कौन सी डेट को माउंट एवरेस्ट समिट किया था? 23 मई. गलत है ये. नहीं, और ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करना है प्लीज. नो. सर नो चीटिंग. नो चीटिंग. चलो पीछे वो मैम को दीजिए. 17th May 2017. नो. 17th May 2024. 23. गलत. ये मैम ने सही जवाब दिया. 17th May 2023. मोटो ऑफ द साइकिलिंग जर्नी. बोलना नहीं है. चलो मैम आप ही बता दीजिए. नो. ओके. एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. हु होल्ड्स द मेंस 100 मीटर स्प्रिंट वर्ल्ड रिकॉर्ड एज 2025? 100 मीटर स्प्रिंट का रिकॉर्ड. एकदम सही. Which is the second highest peak in the world? K2.
सही है। कंचनजंगा। Which part of a bicycle connects the pedals to the rear wheel? सही है। चेन। Which city below sea level and how much below I have cycled? सबसे पीछे। तुरपुल। How much? 155 -155। Good. मतलब सब लोगों ने सुना है अच्छे से। Lowest temperature in which I have cycled and in which country? Okay. I think the last question left. Two more. Two more. Two questions. Okay. From which two countries Mount Everest जो है वो क्लाइम हो सकता है? दो कंट्रीज है जहाँ से माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर सकता है। नेपाल एंड चाइना। एग्जैक्ट। साइकिलिंग जो जर्नी है वो कहाँ पे एंड हुई थी? वेरी इजी। एग्जैक्ट प्लेस चाहिए और ऐसे कोई नहीं बोलेगा, हाथ ऊपर करना है, किसी एक को मौका मिलेगा। वेरी इजी। हेलो, लंदन ब्रिज। एक मौका आपको मिला है। हेलो, एक मौका आपको लंदन मिला। ब्रिज में आपने किया था और वहाँ पे आप मंदिर गए थे लास्ट में। हाँ, टेम्पल गए थे, स्वामी नारायण टेम्पल। एग्जैक्ट एग्जैक्ट एग्जैक्ट। सत्यनारायण टेम्पल। स्वामी नारायण। मैंने एग्जैक्ट प्लेस का नाम मेंशन किया था। एक मिनट, मैं पहले मेंशन कर देती हूँ कि मैंने एग्जैक्ट प्लेस का नाम मेंशन किया था कि लंदन में कौन सा स्वामी नारायण टेम्पल है जहाँ पे हमने राइड पूरी की थी। तो जो पूरा बताएगा उसी को। स्वामी नारायण टेम्पल, नेस्डा और सम नेम। कोई और? कोई और? लास्ट प्राइज है ये। कोई और? या इट्स नेस्डन, लंदन ब्रिज, नेस्डन टेम्पल, स्वामी नारायण टेम्पल। एग्जैक्ट। नेस्डन स्वामी नारायण टेम्पल। थैंक यू सो मच। Every impactful event must end with gratitude. I invite our Senior Vice Chairperson, Ms. Vandana Gujarati, to deliver the vote of thanks. ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। Oh, it's my honor and pleasure to deliver the vote of thanks on behalf of Flow Indore for today's incredibly inspiring session. First and foremost, I would like to thank you, esteemed speaker, Ms. Nisha Kumari, for sharing her valuable experiences and deep insights into the world of adventure activities. Your stories open our minds to new perspective on outdoor challenges and what it truly means to connect with nature. This event wouldn't have been possible without the strong backing and enthusiastic support of our sponsor, who have been the wind beneath our wings. A thundering round of applause for our patron sponsor, Punjabi Saraf, by Floyd, Anu Anand and Sheetal Anand.
Your timeless elegance added sparkle to our event. Our silver sponsor, MV Patel, a name synonymous with luxury and finesse in interiors. Thank you, Manish ji, for elevating our experiences. Associate sponsor, Somya Vehicles by Floyd Shweta Pravesh Agrawal, always driving us ahead with unstoppable energy. Furniture partner, Davina Furniture by Floyd Kopal Maheshwari for adding comfort, class and charm to our setting. Event partner, Gadbandhan by Floyd Priya Pitalia, sports partner Decathlon, mobile partner Oppo by Ashwini ji, gifting partner and Sri Antique and Handicraft by Floyd Chandrika, celebration partner Home Cooks by Sonal Sham Shukla, Adams L and Floyd Neha Modi, styling partner Floyd Purva Kumar, creative partner Mango by Floyd Mansi Pahava, photography partner Pushkar Arts by Pushkar Soni. Gratitude to Icon US Design for beautifully designing Flow Connect. A special thanks to the park for being our gracious venue partner and to the media for being our constant support in amplifying our stories. A special thanks to committee who worked tirelessly behind the scenes to make this event a success. To our esteemed members, distinguished guests, and everyone present here, thank you for being a part of this vibrant community.